Hello, 10th standard. Let's start today's chemistry class. As you know, we are doing chapter 2, acid, bases, and salt. So let's start today's class. Students, as you know, we are discussing chapter 2, that is acid, bases, and salt. And in this chapter, we have discussed what do you mean by acids, and what are the chemical properties of acids, and what are bases, and what are the chemical properties of bases. And we have discussed neutralization reactions also, and we have discussed universal indicator pH scale. So students, I hope you all have understood all the previous topic. Today we are going to discuss importance of pH in everyday life. So this is the contents of this chapter. Indicators we have done natural indicators, synthetic indicators. We have done some physical properties of acids and base also. We have done chemical properties of acids and base also, that how acid react with metals, how acid react with base, and how acid react with metal carbonates. And we have discussed bases properties also. And we have discussed what do all acids and bases have common, and how strong are acids or base solution. And we have discussed universal indicators, and we have discussed pH scales also in this topic. So today we are going to discuss importance of pH in everyday life. So this is the first term, that is pH of water. Are plants and animals pH sensitive? क्या plants और animals को भी pH की वजह से कुछ प्रॉब्लम होती है? सो लेट्स डिस्कस, हम इसमें डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, पीएच स्केल में जो न्यूट्रल पीएच की वैल्यू होती है दैट इज शुड बी 7, और जो पीएच जो हमारे वाटर की पीएच होना चाहिए वो हमारा 7 से 7.8 के बीच में होना चाहिए. Our body works within pH range 70 to 708. जो हमारी बॉडी है वो हमारी में जो वर्क करती है वो 7.0 से 7.8 pH के उसमें ही वर्क करती है. Living organism can survive only in a narrow range of pH change. जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अगर इस रेंज में फिर भी थोड़ा बहुत अंदर, बिल्कुल नैरो अंतर आता है तो ही वो सरवाइव कर पाते हैं, अदरवाइज वो सरवाइव नहीं कर पाते. अगर हमारा वाटर व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर, अगर हमारे बारिश के पानी का रेन वाटर जो होता है उसका pH 5.6 हो, that is the acid rain. And as you know, you have already discussed acid rain in your lower classes, that acid rain जिसमें कि हमारे acids होते हैं, जिसमें हमारा pH rain होती है 5.6, जिसमें किसी एक उसका पीएच बहुत कम होता है, और जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, जो हमारे एक्वाटिक एनिमल्स और प्लांट्स के लिए भी हार्मफुल होते हैं, सारे प्लांट्स के लिए हार्मफुल होते हैं. व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू द रिवर, इट लोवर्स द पीएच ऑफ रिवर वाटर. जब वो रेन वाटर जिसका पीएच 5.6 होता है, जब वो हमारे रिवर में फ्लो कर जाती है, तो जो वो हमारे रिवर वाटर का भी पीएच कम कर देती है. तो जो सर्वाइवल होती है एक्वाटिक लाइफ इन सच रिवर बिकम्स डिफिकल्ट. तो इन एक्वाटिक एनिमल्स के लिए सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है अगर हमारा पीएच 5.6 से भी कम होता है. ओके, सो जो हम, इसलिए आपको पता चल गया जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनको भी फर्क पड़ता है कि जो हमारा वाटर का पीएच है दैट शुड बी इन द रेंज दैट इज 7 to 7.8. and the next is pH of soil. स्टूडेंट्स, सॉइल ट्रीटमेंट आपने पढ़ा होगा इन योर 7th क्लास, जब हमने एसिड बेसिस सॉल्ट पढ़ा था. सॉइल ट्रीटमेंट होता है जिसमें कि जो हमारे पीएच का सॉइल होना चाहिए, इट शुड नॉट बी टू एसिडिक और इट शुड नॉट बी बेसिक. अगर वो बहुत ज्यादा एसिड होगा तब भी हमारी क्रॉप के लिए अच्छा नहीं है, और अगर वो बहुत ज्यादा बेसिक होगा तब भी वो हमारे क्रॉप्स के लिए अच्छा नहीं है. तो व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉइल इन योर बैकयार्ड? जो हमारे क्या पीएच होता है हमारे सॉइल का? सो स्टूडेंट्स, प्लांट्स रिक्वायर्ड अ पीएच रेंज ऑफ देयर हेल्थी ग्रोथ. सो स्टूडेंट, एक प्लांट को भी हमारे एक स्पेसिफिक रेंज की जरूरत होती है ताकि वो एक हेल्थी ग्रोथ प्लांट हो सके.
To find out the pH required for the healthy growth of plant, you can collect the soil from various places and check in the manner जैसे कि आपकी activity में describe किया गया है. So students, open your NCERT book, read the activity and do the activity, and you have to find out that how much pH is required for the crops. So as you can note down which plants are growing in the region which you have collected the soil. और आपको बताना है उस पर्टिकुलर जहां से आपने सॉइल को कलेक्ट किया है उस पर्टिकुलर सॉइल में आप कौन सी टाइप का प्लांट को हम ग्रो करवा सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, हमारे जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, आपको पता है हम फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं सॉइल में. अगर हमारी सॉइल बहुत ज्यादा बेसिक है या एसिडिक है तो हम कुछ फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं ताकि सॉइल को न्यूट्रलाइज कर सके, एक न्यूट्रल में ला सके जो हमारी क्रॉप के लिए अच्छी हो एंड दैट दे गिव हेल्थी ग्रोथ. तो डिफरेंट नीड डिफरेंट सॉइल पीएच. तो आपको पता है अलग अलग प्लांट अलग अलग को सॉइल की अलग अलग पीएच उनका सॉइल का होता है. Next is pH of our digestive system. Student, in the starting of this chapter, I have already told you that our stomach produce hydrochloric acids. ओके एंड जब इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वॉल्यूम या जो भी है इसकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है हमारे स्टमक में, सो वी फील एसिडिटी. तो हमें क्या लगता है, हमें लगता है जैसे हमें कौन सी प्रॉब्लम हुई है, एसिडिटी. सो एट द टाइम ऑफ द इनडाइजेशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज गोइंग टू प्रोड्यूस मोर. वो ज्यादा स्टमक में प्रोड्यूस होने लग जाता है. इट हैज so हमें उस कंडीशन में we should consume magnesium hydroxide, that is milk of magnesia antacids. So it is very interesting to note down that our stomach produce hydrochloric acids. It's help in the digestion of food without harming the stomach. तो जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है स्टूडेंट्स, it helps the digestion of food, जो कि हमारे स्टमक के लिए नुकसान नहीं होता, but it should be in a manner or it should be in a within the range. During indigestion, the stomach produce too much acid and this cause pain and इरिटेशन. और जब हमें इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है तो हमारे इसका मतलब हमारे स्टमक में बहुत ज्यादा एसिड बनने लगा है जिसकी वजह से पेन और इरिटेशन होती है. और ये एसिड्स क्यों बनने लग जाते हैं स्टूडेंट, कि हम कम से कम पानी यूज कर रहे हैं या और ज्यादा स्पाइसी खाना खा रहे हैं. तो हमें इंडाइजेशन को दूर करने के लिए वी शुड नॉट कंज्यूम स्पाइसी फूड, वी शुड कंज्यूम ओनली न्यूट्रल. हमें ऐसा खाना खाना जिसमें स्पाइसेस कम हो एंड वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ water. So student, to get rid of this pain people use bases. तो इस पेन से छुटकारा पाने के लिए लोग क्या यूज करते हैं, बेस पीते हैं जिसको हम बोलते हैं एंटासिड. आपने देखा होगा आपके घर में डाइजीन की बॉटल्स होती हैं. सबसे ज्यादा जो एजिड लोग होते हैं उनको थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, समर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है. तो ये जो एंटासिड्स होते हैं ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं हमारे एक्सेस एसिड को. जो हमारा ज्यादा से ज्यादा एसिड प्रोड्यूस हो रहा है तो ऐसा एंटासिड उसको न्यूट्रलाइज कर देता है. तो एंटासिड में हम पी सकते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि एक माइल्ड बेस होता है जो कि इसी पर्पस के लिए यूज किया जाता है. ओके, नेक्स्ट पीएच चेंज कॉज ऑफ टूथ डिके. आपने देखा होगा, आपने ऑब्जर्व किया होगा स्टूडेंट 10th स्टैंडर्ड दैट कभी कभी क्या होता है किसी किसी के टीथ में कैविटी होना स्टार्ट हो जाती है, किसी का आधा दांत टूट जाता है. वो किस वजह से होता है, अगर हमारे टूथ का भी जो पीएच है, अगर हमारे माउथ के अंदर का जो पीएच है वो भी अगर एसिडिक हो जाएगा तो वी सफरिंग फ्रॉम टूथ डिके. तो हमें टूथ डिके जैसी प्रॉब्लम हो जाती है. एज यू कैन सी इन दिस इमेज, अगर हम ज्यादा मीठा खाने लग जाते हैं तो बोलते हैं और उससे हमारे पीएच 5.5 हो जाता है जिससे कि ऐसी प्रॉब्लम टूथ डिके की प्रॉब्लम आ जाती है. तो इसलिए हम ब्रश क्यों करते हैं, बिकॉज एज यू नो टूथ ब्रश जो होता है दैट इज अ बेस एंड हमारे इस एसिड हमारे टीथ में ज्यादा एसिड ना बने जिसकी वजह से हमें इस बेस को यूज करते हैं डेली, क्योंकि हम डेली बहुत अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं. सो वी शुड गेट रिड ऑफ द टूथ डिके बाय doing brush in a twice in a day after every meal. So students, let's discuss tooth decay starts when pH of mouth is lower than 5.5. तो tooth decay कब start होता है, जब हमारे mouth का pH that is lower than 5.5.
Tooth enamel made up of calcium hydroxide, a crystalline form of calcium phosphate. It is the hardest substance in our body. तो जो हमारा टूथ का जो हमारे गम्स होते हैं, ये किससे, जो हमारा टूथ इनेमल होता है, ये हमारे टीथ होते हैं, किससे बने होते हैं? दैट शुड बी मेड अप ऑफ अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फोस्फेट, और ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी पूरी बॉडी का. इट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, but it is corroded. More note down this point. This is corroded when our pH in our mouth is below 5.5. जब हमारे माउथ का pH 5.5 हो जाता है तो हमें corroded जैसी हमारे दांतों में सड़न होना स्टार्ट हो जाती है. बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ प्रोड्यूस एसिड्स बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेन इन द माउथ आफ्टर एवरी ईटिंग. तो आप देखोगे जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं हमारे माउथ में, वो एसिड्स प्रोड्यूस करने लग जाते हैं, और हम जो भी हम शुगर फूड पार्टिकल्स हमारे पूरे माउथ में रह जाते हैं बच्चों, तो वो हमारे दांतों में कैविटी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं, एसिड प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं. सो द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस, टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड. तो हमें जब भी हम खाना खाएं, सो वी शुड क्लीन आवर माउथ यूजिंग टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक एंड क्लीन. The teeth can neutralize the excess acid. So हमें जनरली हम टूथपेस्ट यूज करते हैं, हम अपने दांतों को साफ रखते हैं. क्यों? क्योंकि ताकि हम उस एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर सके एंड प्रिवेंट फ्रॉम दी टूथ डिके. सो दिस इज द ऑल अबाउट टूथ डिके. तो आपको पता चल रहा है हम रोज कितना, हम कहाँ कहाँ पीएच यूज कर रहे हैं. नेक्स्ट, पीएच यूज्ड बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स फॉर सेल्फ डिफेंस. आपने देखा होगा जब हमें कोई आंट स्टिक करता है तो हमें रेडिश होना स्टार्ट हो जाता है ना, तो हम उस पे स्टूडेंट्स बेकिंग सोडा लगाते हैं. व्हाई? बिकॉज द आंट स्टिक हैज एसिड, दैट इज फॉर्मिक एसिड. जो आंट हमें स्टिंग करता है, बाइट करता है, वो प्रोड्यूस करता है फॉर्मिक एसिड इन आवर बॉडी that cause redness on our body. To prevent from redness, we have to rub the baking soda on our palm or on that redness. So it neutralizes the effect of ant stick that consume methonic acids or formic acids. Okay. कोई भी जो कीड़ा होता है वो हमें मिथोनिक एसिड इंजेक्ट करता है, नेटल लीव्स जो होते हैं वो भी यही प्रोड्यूस करते हैं. सो वी शुड रब विद द डॉक लीव्स हमारी एक होती है, उससे कि हमारी मिथोनिक एसिड से हमारी डॉग से ठीक हो जाती है. सो सेल्फ डिफेंस जो हमारी रेडनेस से ठीक हो जाती है. So self-defense by animals and plants through chemical warfare. Have you ever been stung by honeybee? Bees sting leaves and acid which cause pain and irritation. So you have to use mild base like baking soda on the stung area, which gives you relief. Stinging hair of nettle leaves inject methonic acid causes burning pain. तो जो आंट स्टिक फॉर्मिक एसिड्स एंड जो हमारी नेटल लीव्स होती है वो इंजेक्ट करती है मिथोनिक एसिड, जिससे भी हमें भी बर्निंग पेन, जलन होती है. सो वी शुड रब विद द डॉक लीव्स. So student, this is all about your pH in everyday life. Now I am going to discuss with you nature provides neutralization options. So अभी हमने पढ़ा नेटल के बारे में, that nettle is a herbaceous plant which grow in a wild. एक wild की तरह होता है. Its leaves are stingy hair. इसकी जो बच्चे leaves होती है ना, sting की तरह, कांटे की तरह होती है. Which cause painful sting when touched accidentally. और जैसे ही हमारा इस पे हाथ लगता है तो हमें ऐसा लगता है, हमें पेन होना स्टार्ट हो जाता है. Why? Because this is due to the methanoic acid secreted by them. क्योंकि इसमें methanoic acid होता है. A traditional remedy is rubbing the area with the leaf of dog plant. हमारा dog plant होता है, हमें उससे उसको rub करना चाहिए. Which often grow besides the nettle in the wild. Can you guess the nature of dog plant? So next time you know what to look out for it if you accidentally touch a nettle plant while ट्रेकिंग. जब ट्रेकिंग में आपको कभी ऐसा लगे कि आपको नेटल लीव्स ने स्टिंग किया है या आपको एक्सीडेंटली आपको उस पे जलन हो रही है, तो आपको ये रेमेडीज पता होनी चाहिए. So students, let's discuss some natural occurring acids also. We have already discussed in when we have started this chapter. नेचुरल सोर्स होता है स्टूडेंट्स हमारा विनेगर, और विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? दैट इज एसिटिक एसिड. नेचुरल
एंड ऑरेंज में हमारा जो नेचुरल एसिड होता है दैट इज सिट्रिक एसिड. टर्मेरिन मींस imli, that is contain tartaric acid. Tomato contain oxalic acid. Sour milk curd, that is lactic acid. Lemon citric acid. Unsting methanoic acid. Nettle sting methanoic acid. So I hope you all have understood all the points. Again, I'm going to repeat myself that that pH of water that should be in a range that is 7 to 7.8. If the pH range of water is less than 7, that means it contains acids. pH of soil, the soil should not be very acidic or should not be very basic. So neutral रहनी चाहिए. pH of our digestive system, that when acid produce excess, when our stomach produce excess acid, so we should consume antacid, that means magnesium hydroxide. Cause of tooth decay, that we should do brush in twice in a day to prevent from the tooth decay. And as you know, ant and nettle leaves inject methanoic acid in our body, so we should rub with the baking soda where it has to be sting. जहां पर भी उसको sting हुआ है, तो we should rub with the base. And this is all about natural occurring acid. Thank you so much, 10th standard. I hope you all have understood all the points. Thank you very much.